సభ్యుని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దీని తర్వాత మనోహర్ రెడ్డి గారు ఎక్కడున్న వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మనోహర్ రెడ్డి గారు టీడీఎఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద మాట్లాడడానికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. God willing, I will be briefing up our Honorable Chief Minister also on this subject and trying to work out on this model as to how to develop a sustainable and a continuous model starting from home industry to the large industries and everywhere. And there is one more thing, like there is a global feeling, or rather I would say in the Chinese, whatever politically is happening, lot of American companies which have set up their factories and places of manufacturing in China. Because of the policy of China, authoritarian rules and things like that, they are looking out for alternatives. And India is one of the places. In 2009, when I was National President of Indo-American Chambers, I had bring out a slogan saying, how to make India the next global manufacturing hub. That was in 2009. I had drawn up a plan, submitted to Honorable Rosaiah Garu, and then it was submitted to the American Embassy, but due to change in the governments and the Telangana education, somehow it couldn't take shape. So with this study and all these things, I find it will be very, very easy for us to work it out. Might be take about a year or two to work out a detailed workout plan and to implement it as to how to produce lakhs and lakhs of self-sustaining jobs as a self-employment basis. So this will be a very good model, and apart from that, there will be another model like to invite the people who want to disinvest from China and to start their shop elsewhere. We have an advantage that we are already the world's largest IT professional suppliers in the world. With that happening, the Americans knowing and we have an advantage of English as a learning subject, is their English language as a teaching subject. So all these benefits, unless we try to take advantage of these benefits and try to move it now. So this is the opportune time now for us to take lead, and now that I feel Telangana was formed in 2014, but it is liberated during this 30th of November. So आज TDF तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम की मीटिंग रविंद्र भारती में रही आज, तो इट्स ए वेरी टाइमली मीटिंग और बहुत अच्छी मीटिंग रही। काफ़ी लोग आए हैं और कोदंडराम जी जो है इसके स्पेशल गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशल गेस्ट है। तो इसमें मेरे को जो सब्जेक्ट बात करने के लिए दिया गया था, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये दो सब्जेक्ट जो है आज के दिन सबसे अहम सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट का है, जिसके बारे में मगर मुझे बहुत ही कम टाइम दिया गया। तो उस टाइम के अंदर मुझे एक ब्रीफ देना था कि क्या कोई ऐसा मॉडल है जिसके तहत जो है हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। लाखों एम्प्लॉयमेंट चाहिए और वो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो ये एम्प्लॉयमेंट या कोई ऐसी स्कीम जो है सस्टेनेबल, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल, मतलब कि स्कीम चलना चाहिए, यानी बरसों बरसों तक चलना चाहिए स्कीम, और वो जो है जब तक के बगैर गवर्नमेंट के एड के खुद ही से चलना चाहिए और ख़ुद ही से प्रॉफिट सेंटर रहना चाहिए। इसके लिए मैं जो है इंडो अमेरिकन चेंबर्स में, जहाँ पे मेरा 40वां साल है, ये मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ मैं, और इंडस्ट्री के अंदर मेरा 49th ईयर है, 48 ख़त्म हो गए, 49th ईयर रनिंग है। तो इस तजुर्बे के बिना के ऊपर जो है मैं काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ, और अभी इंशाल्लाह जो है मैं एक पेपर भी प्रेजेंट करने वाला हूँ रेवंत रेड्डी साहब को। और क्योंकि नई गवर्नमेंट है और मेरे हिसाब से जो है तेलंगाना जो है अब लिबरेट हुआ है। तेलंगाना फॉर्मेशन तो 14 में हो गया, जून में, मगर तेलंगाना जो है ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर जड़ चुका था, बिल्कुल ही एकदम गला घोट दिया गया था, ऑटोक्रेटिक रूल था। तो अब अल्लाह की मेहरबानी है और पब्लिक का सपोर्ट है कि कांग्रेस को फिर से एक मौका मिला, और मेरा ये जो है पूरी मेहनत रहेंगी कि किस तरह से मैं
रेवंत रेड्डी साहब को हेल्प करूं और मेरे जो आइडियाज़ बरसों के जो स्टडी करे हुए आइडियाज़ है, तो उस आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करें तो तेलंगाना को एक रोल मॉडल स्टेट पूरे इंडिया में हम बना सकते हैं। और तेलंगाना को जो है ना, हाउ टू मेक तेलंगाना द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, ये मेरा टाइटल रहेगा। इसके तहत हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और भी दूसरे टॉपिक भी 3-4 टॉपिक्स पे मैं उनको प्रेजेंटेशन इनिशिएटिव दिया हूँ। अब कुछ इंशाल्लाह थोड़े दिन में बात होंगी, बात हुई तो जो है ना, कोशिश तो है अब सब। आप देखिए पब्लिक की जो तवक्को थी और जैसा मेरे को रुझान लग रहा कि रेवंत भाई जो है ना बहुत ही तेज़ी से काम शुरू कर दिए हैं और जो काम उनके बस में है, जो फौरी कर सकते, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होगा। यानी छोटी चीज़ आपको बताऊं मैं कि जब स्वेरिंग इन दिन के अंदर चंद घंटों के अंदर उन्होंने जो है प्रगति भवन के जो है पूरे बैरियर्स निकाल दिए, तो आप सोच के देखिए कि आदमी जो है कि काम के जज्बे से आए हुए हैं। और आपकी हमारी पूरी जो है डिटर्मिनेशन के साथ काम करने के लिए हम कोशिश करना कि रेवंत भाई को सपोर्ट करना और उनको जाके और कांग्रेस का झंडा गाड़ना है हमको, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर भी अगर हम सपोर्ट करें। और हमारी कोशिश ये रहेंगी कि तेलंगाना स्टेट जो है ना एक वाहिद और अकेला स्टेट, रोल मॉडल स्टेट इंडिया का बन जाए, जिसको देख के हर दूसरा स्टेट कॉपी करे। तो ये मेरी जो है आप लोग सबसे गुजारिश रहेंगे कि हमको सपोर्ट कीजिए, काम करने में जो है आप बढ़ावा दीजिए। ओके साहब, थैंक यू। थैंक यू।